Hello everyone, we are a student of BCIT Department of NED University, and today we will be presenting our complex computing problem for the Programming Fundamental course. Our project title is Banking System with ATM. In this video, we will walk through the features, the future scope, and the live demonstration of our code. Our team members are first of all me, Arsalan, and then second one Aryan, and third one is Sami. Each of us contributed to different parts of the project, including design, coding, and testing. So yeah, first of all, I open my PPT. So the name that I tell you before that the name of our project is Banking System with ATM. Okay, our team name is Code Storm. This is our bank name, which we choose is Sa Bank. Okay, next, first of all, clear in mind that this is not a typical ATM. This is something else. It is a future where user can access their ATM at home. Okay. So yeah, this is the future of ATM. Next, now we discuss the key features of our ATM machine. First key feature is user can create an account and set a password to access the ATM. The account information is stored in a file so it's remain available even after the program's end. So let's go through the code and see how it's saved and how we can access our credentials after program ends. So yeah, this is our code. First of all, in main function, first we define some prints, do some prints that tell about our bank name, our tagline. Then when user start the program, it asks to choose one option, and it has two options. First for create your account and second for login. If the user select one, so it's called create your account, and if it's choose to, so it's called login to account, and otherwise it said enter valid option. So let's see how we create your account, matlab how we create account in our bank. Go through that function. First of all, whenever function call, we open a file in a code that store our user's credentials like her password, everything are stored in file. So first we open that file, then we create a structure that we define in global space that look like this. It contains the user name, the user email, phone, password, balance is blocked, and we also define the range of that strings, that this is the limit of name, email, phone, password, that also defined in global here is. Okay, so when we go through our create your account code, so first of all, you create a user structure, then it asks user about its name, about his email. This all things are asked from user. And whenever we ask something like if we ask name from user, so we use fget function to get the name and store in it file. Okay, so what fget do, it's get the whatever you input on screen, it gets. And the reason we use here strip new line function, basically when you write, let's suppose enter name, my name is Arsalan. When I write Arsalan, then I press enter. So when you press enter, the fget function also store backslash n in name. That is the problem. So for tackle this problem, we use strip new line function. Let's see this. There is a function who takes string as an input, and then this line do that कि ये जो है आपका first it find out the first index of backslash n. This function strcspan. This find out the first occurring index of slash n and convert it with null null operator, null character, sorry, null character are converted with backslash n. So यार क्यों, ताकि हमारा जो स्ट्रिंग है वो खत्म हो जाए स्लैश जीरो पे, ये स्लैश एन ना आए। अगर ये आएगा तो हमारे पास आगे मसला आएगा जब हम कंपेयर करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया है कि अगर जो स्लैश एन है उसको ढूंढो कहाँ पर है फर्स्ट इंडेक्स उसका, और उसको नल ये नल कैरेक्टर से इसको रिप्लेस कर दो, ठीक है। देन वी मूव फॉरवर्ड टू आवर क्रिएट योर अकाउंट फंक्शन। वी हमने सारी चीज़ें उससे ले ली, पासवर्ड, फ़ोन, ईमेल वगैरह।
Then whenever we take password, we apply a Zor cipher function that encrypts the password. Okay, then we move forward, then we do ask the user how much amount you want to deposit, then also store in that structure. And we set one more variable that we use in our structure is blocked. Is block basically we use in our program later. It tell us कि भाई यूजर का अकाउंट ब्लॉक्ड है या नहीं है. By default it is unblocked, so we set to 0. Whenever it's blocked, we set this value to 1. We tackle this ahead of program. Okay, then we printf all these things in our file to store that data in our database, in our file, to ताकि हम उसका यूजर का जो डेटा है वो आगे भी उसका इस्तेमाल कर सके. अब ये डेटा स्टोर कैसे होगा हमारे पास फाइल में. लेट आई सी यू दैट the data is stored like this. Let's see last one. First is stored the name of the user, then its email, then its phone, then its password which is encrypted by a Zor cipher, then its balance, and last one is blocked or not. By default it is 0. So yeah, that's how we are storing the data of our user. Next thing, which is we close the file, our work is done. Then we printed a output that your account created successfully. Then we have a variable number of user. We first in our program, whenever our program run, we first load the users, क्योंकि हमारे पास पहले ही प्रोग्राम में यूजर हो सकते हैं स्टार्टिंग में. सो वी फर्स्ट लोड द यूजर इन आवर नंबर ऑफ यूजर वेरिएबल, क्योंकि आगे हमें जाके ये पता होना चाहिए कि हमारे पास यूजर्स कितने हैं, क्योंकि हमें उसको एरे में स्टोर करवाना होगा तो हमें एक लूप चलाना पड़ेगा. तो हमें लूप के एंडिंग पॉइंट को टैकल करने के लिए कि क्या होगा, तो हमने इसके लिए लोड यूजर को कॉल किया और उसको नंबर ऑफ यूजर में स्टोर करवा लिया. लेट्स सी लोड यूजर कर क्या रहा है. लोड यूजर बेसिकली कुछ नहीं कर रहा, आपका यूजर का जो एरे है जो हमने ग्लोबल में डिफाइन किया है उसको एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहा है. देन इट्स ओपन द फाइल यूजर डॉट टी एक्स टी जो हमने बनाई हुई है इन अ रीडेबल फॉर्मेट. ये अभी रीड कर रहा है. सही है. ये कर क्या रहा है, ये एक वेरिएबल इसने डिफाइन किया है एंड काउंट इज इक्वल टू 0. ये एक लूप चला रहा है. लूप में क्या हो रहा है, हमने पास किया हुआ है कि ये लूप चलता रहे जब तक के हमारे 6 के 6 फील्ड रीड ना हो जाए. और जब ये रीड होता रहे, हमने इसको कंडीशन में डाल दिया. जब ये सारी चीज़ें रीड हो जाएंगी तो हमारा जो एफ स्कैन एफ होगा वो क्या रिटर्न करेगा, कोई नंबर रिटर्न करेगा. अगर 6 की 6 हो जाती है तो 6 रिटर्न करेगा, वरना 5 4 जब जो भी है. तो अगर 6 हमारी चीज़ें मतलब रीड हो जाती हैं तो 6 = 6, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी. तो उसके बाद हम अंदर जाएंगे. अंदर जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, फिर अगेन हम ये जो हमारा फंक्शन था जॉर साइफर का, इसको हम कॉल कर रहे हैं ताकि हम पासवर्ड को अपने पास डिक्रिप्ट करवा के स्टोर करवाएं, ताकि हम उस पर कुछ और काम कर सकें अगर लॉगिन करना है वगैरह वगैरह. तो उसके हम इसको डिक्रिप्ट करा लिया और फिर हम काउंट चलाते जा रहे हैं चलाते जा रहे हैं. और बस हम क्या कर रहे हैं, इसको अपने अपने हम इस एरे में स्टोर करवाते जा रहे हैं. लोड यूजर में हम जो हमारा एरे था यूजर में, इसके अंदर हम सारे जो भी हमारे पास यूजर पड़े हुए फाइल में उसको हम इसके अंदर हम स्टोर करवाते जा रहे हैं लाइन बाय लाइन. ये फंक्शन बस ये काम कर रहा है. और हम क्या कर रहे हैं, साथ साथ हम ना एक वेरिएबल इससे हमने रिटर्न करवा रहे हैं, फंक्शन जो कॉल करेगा ये इसको हम रिटर्न करवा रहे हैं कि कितने यूजर लोड हुए हैं. और हमने इसको अपने पास मेन फंक्शन में स्टोर करवा लिया कि भाई इतने नंबर ऑफ यूजर हमारे पास स्टोर हुए हैं, इतने नंबर ऑफ यूजर हमारे पास अवेलेबल है. क्योंकि हमें आगे जाके इस नंबर ऑफ यूजर का काम आएगा, तो हमने शुरू में इसको कॉल करवा के अपने पास स्टोर करवा लिया है. ये मेन में ये रहा हेयर, यहाँ पे हमने इसको स्टोर करवा लिया कि भाई इतने ये यहाँ यूजर और नंबर है. ठीक है. तो हम थे कहाँ पे, हम यहाँ पे थे हेयर. सही है. जब हमने देखो, अब हमने शुरू में स्टोर करवा लिए थे कि भाई इतने यूजर है हमारे पास. अब जब ये यूजर भी ऐड हुआ है तो एक नया यूजर आ गया, तो हमने अगेन कॉल मारी लोड यूजर, क्योंकि भाई अपडेट कर लो नंबर ऑफ यूजर, क्योंकि आपके पास एक और यूजर आ चुका है जिसने अभी अभी अकाउंट बनाया है. तो उसने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया, नंबर यूजर 1+ हो गया होगा. ठीक है. इसके बाद हम कॉल कर रहे हैं हमारा प्रिंट ऑप्शन वाला फंक्शन. प्रिंट ऑप्शन में हम पास कर रहे हैं अपना ये जो भी एलिमेंट था, जो भी हमारा स्ट्रक्चर था, अभी जो यूजर ने अभी जो यूजर हमारे पास एंटर हुआ है हमारे बैंक में, तो उसकी जो भी क्रेडेंशियल है हम उसको पास कर रहे हैं प्रिंट ऑप्शन के पास, ताकि जो आगे काम प्रोसीजर जो है इसका आगे ट्रांजेक्शन करनी है कैसी करनी है वगैरह वगैरह, ताकि वो यूजर इसको देख सके. तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूजर का जो भी स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन में पास कर दिया है. ठीक है. तो ये अभी हमारा क्रिएटर अकाउंट वाला फंक्शन ऐसे वर्क करेगा. सही है. पूरा हमारा फ्लो ऐसे चलेगा. सेकंड थिंग जो मैंने आपको बताई थी कि यूज़र इसके बाद भी जब हमारा प्रोग्राम जो है जब एंड हो जाएगा तो उसके बाद भी आकर लॉगिन कर सकता है. तो मतलब हमने कई चीज़ें स्टोर करवाई हैं, तो जो स्टोर करवाई हैं और जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो वो हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं अब वो देखते हैं.
तो उसके लिए हमने क्या किया, वही फंक्शन बनाया लॉगिन योर अकाउंट। और हमने इसको जब शुरू में बताया था कि दो ऑप्शन दे रहे हैं कि या तो लॉगिन कर सके या तो क्रिएट योर अकाउंट कर सके। और जब यूजर हमारा लॉगिन करेगा तो वो कैसे काम करेगा वो देखते हैं। फिर हमने वही काम किया है, एक स्ट्रक्चर बना दिया यू, जो कि किस तरह का है, यूजर टाइप का है, जो हमने शुरू में ऊपर डिफाइन की थी ग्लोबल में, वही चीज़ की है। फिर हमने दो स्ट्रिंग बना ली, एक लॉगिन नेम और लॉगिन पासवर्ड का। जो भी यूजर लॉगिन नेम डालेगा, लॉगिन पासवर्ड डालेगा, हमें उसको अपने पास स्टोर कराना पड़ेगा ताकि हम उसको चेक कर सकें आगे जाके कि भाई जो फाइल में है पूरा करके कि वो है, यूजर एक्सेस करता है नहीं करता। तो उसके लिए हमने दो वेरिएबल बना लिया, ठीक है। हम यहाँ पे से वही काम कर रहे हैं, प्रिंट एफ करवा रहे हैं, एफ गेट करवा रहे हैं, वही काम जो हमने ऊपर किया था, वो स्ट्रिप न्यू लाइन कर रहे हैं ताकि बैकस्लैश एन स्ट्रिंग के आखिर से हट जाए और नल नल कैरेक्टर आ जाए, सही है। ये दो हमने चीज़ें से पूछ ली, नेम और पासवर्ड। हम लॉगिन उसका नेम और पासवर्ड से करवा रहे हैं, ठीक है। जब हमने दो चीज़ें पूछ ली, फिर हमने क्या किया, एक फाइल ओपन की, वही वाली जो हमारे पास थी, इन रीडेबल फॉर्मेट आर के बता के, सही है। अब ये क्या कर रहे हैं, अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो यूज़र डाला है इसने, हमारा जो भी एंटर हुआ है, इसने जो डाला है नेम और पासवर्ड, क्या ये हमारे पास फाइल में पड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम चेक कर रहे हैं, ये लूप चलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने डिफाइन कर दी कि हमारी जो लाइन होगी वो तकरीबन 200 कैरेक्टर्स की, सही है, रफली में डिफाइन कर ली, सही है। और हमने एक वेरिएबल बनाया फाउंड इंडेक्स, जो भी अभी क्या है -1 है, कि अभी हमें नहीं पता कि यूजर, ये हमें ये बताएगा कि यूजर मिल गया है, तो उसको हम सेट कर देंगे उसके इंडेक्स के बराबर। अगर नहीं मिला तो उसको हम रखेंगे -1 कि यूजर आपका अवेलेबल नहीं है, और फिर हम कहेंगे कि आपका क्रेडेंशियल्स गलत है, आप सही से लॉगिन करें, ठीक है। अब हम कर कैसे ना, अब यहाँ देखें, ठीक है। हमने लूप चलाया, उसमें क्या कर रहे हैं, हम एफ गेट कर रहे हैं, लाइन को, पूरी लाइन को गेट कर रहे हैं, ठीक है। जो लाइन हमें एक एक करके लाइन आती जाएंगी हमारी, सही है। हम लूप के अंदर जाएंगे, तो हमने यूज़ किया है फंक्शन एस स्कैन एफ। ये क्या करेगा कि हमारे पास जो स्टोर हुआ है डेटा हमारे फाइल में, जो स्ट्रिंग है बहुत बड़ी सी, मैंने आपको दिखाई भी थी फाइल में, वो उसको पूरे को ना इस इसके अंदर तोड़ता जाएगा। ये देखो, जैसे मैंने अपना डिफाइन कर दिया कि शुरू के 29 कैरेक्टर्स हैं, वो होंगे नेम के, मेल के, फ़ोन के, पासवर्ड के, बैलेंस के, इस ब्लॉक के, ये पूरा सारा उसको देख लेगा। फिर हम जाएंगे अंदर इस फंक्शन के। अब हम चेक कर रहे हैं कि भाई यूज़र हमारे पास एक्सेस करता है नहीं करता। तो फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पासवर्ड स्टोर हुआ हुआ है फाइल में, वो कैसे स्टोर हुआ हुआ है, डिक्रिप्ट होकर स्टोर हुआ हुआ है, सॉरी इंक्रिप्ट होके। तो हमने उसको करना है डिक्रिप्ट। तो हम क्या यूज़ करेंगे, डॉट साइफर लगा देंगे, उससे हम उसको डिक्रिप्ट कर लेंगे। अब हमारे पास पासवर्ड, उसका एक्चुअल पासवर्ड आ गया, सही है, ठीक है। फिर हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि अगर यूज़र नेम जो डाला है उसने अभी लॉगिन होते हुए, वो और जो स्टोर किया हुआ है क्या वो बराबर है। अगर बराबर है तो भाई चेक करो कि क्या वो ब्लॉक तो नहीं है, क्योंकि कंडीशन है ना कि अगर लेट सपोज अगर वो हमारे पास लॉगिन हो गया, उसने नाम के साथ अपने जो भी डाला था उसने लॉगिन हो गया, लेकिन अगर वो ब्लॉक्ड हो तो तभी तो हमें इसको नहीं करवाना ना, हमने इसको लॉगिन नहीं करने देना। तो अगर वो नेम तो बराबर है, सही है, लेकिन अगर वो ब्लॉक्ड है तो आपने क्या प्रिंट करवाना है, क्या योर अकाउंट इज ब्लॉक्ड, अभी भी आपने उसको लॉगिन करने नहीं देना। फिर हमने एक और इफ कंडीशन बनाई कि भाई चेक करो कि जो पासवर्ड है क्या वो बराबर है उसके, हाँ बराबर है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हमने जो ऊपर डिफाइन किया था वेरिएबल फाउंड इंडेक्स, हमने इसको किससे स्टार्ट किया था, -1 से इनिशियलाइज किया था। तो हमने वहाँ पे क्या रख दिया, नंबर ऑफ यूजर, जो भी इसका इंडेक्स है, हमने नंबर ऑफ यूजर किससे स्टार्ट किया यहाँ पे, हमने उसी वेरिएबल को यूज कर लिया जो हमने शुरू में डिफाइन किया था, उसके हमने यहाँ पे शुरू कर लिया 0 से, क्योंकि बाय द एंड ऑफ लूप इसका वही वैल्यू हो जाएगी जो शुरू में हमने डिफाइन की थी, लोड किया था ना यूजर्स। तो जो भी यूजर्स की वैल्यू थी ना, जैसे 7 यूजर हैं, 8 यूजर हैं, तो बाय द एंड ऑफ दिस लूप वो खुद ही सेट हो जाएगा। तो हमने उसी वेरिएबल को यूज कर लिया 0 से स्टार्ट करके, ताकि कोई और वेरिएबल यूज हमें ना करना पड़े, ठीक है। तो हमने डिफाइन कर दिया कि अगर भाई यूजर मिल गया है, तो जिस लूप पे जिसमें उसमें मिला है ट्यूशन पे, हम जो प्लस प्लस कर रहे हैं नंबर ऑफ यूजर को, तो जो भी इंडेक्स मिला उसको आप किस में स्टोर करवा दो, फाउंड इंडेक्स में स्टोर करवा दो। अगर नहीं मिला, अगर सही ये नहीं है पासवर्ड, अगर नहीं, पासवर्ड क्या है कि जो पासवर्ड उसने डाला है वो अगर रिवर्स है उसकी, जैसे इसका पासवर्ड अगर aslan123 था, अगर उसने उल्टा पासवर्ड डाल दिया है, तो क्या करो, आप उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दो। अगर उसने उल्टा पासवर्ड डाला है तो क्या करो, उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दो। और कैसे करेंगे ब्लॉक, हमने उसके जो स्ट्रक्चर में जो एक वेरिएबल था इस ब्लॉक, हमने उसको क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। फिर इसका हमें यूजर को सेव भी करवा दिया कि भाई अब यूजर को सेव कर दो उसके एरे में। अब क्योंकि हमने चेंजेस किए ना उसके स्ट्रक्चर में, तो जो भी चेंजेस किया उसको वापस रिफ्लेक्ट कर दो उस एरे के स्ट्रक्चर में। तो ये सेव यूजर क्या कर रहा है, ये भी देख लेते हैं एक बार जल्दी से। सेव यूजर क्या कर रहा है, सिंपल आपका फाइल ओपन कर रहा है, ये राइट कर रहा है आपके उस फाइल के अंदर, ठीक है। जो भी आपके पास इसके अंदर आपके सारे यूजर एरे में स्टोर करा हुए हैं, मैंने दिखाया था आपको शुरू में। तो उस एरे में जो भी आपके पास सारे एलिमेंट्स हैं, उस सारे एलिमेंट्स को वापस रीराइट कर दो, ताकि हमारी फाइल जो है वो अपडेटेड रहे, जो भी चेंजेस किए हमने वो अपडेट वहाँ पे हो जाए सारे फाइल, सही, जो सारे जो उसकी डेटा था वो सारा अपडेट हो जाता। हमने ये सारा काम कर दिया, सब प्रिंट करवाया वगैरह वगैरह, तो हमारे यहाँ पे आके सारे जो चेंजेस थी वो हमारी क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी, ठीक है। अब अगर वापस आए हम लॉगिन यूज़र पे, हम जल्दी से, ये हम आ जाएंगे लॉगिन यूज़र पे, ये आ गए हम, ठीक है। तो हमने ये कर लिया, ये वाली फंक्शनलिटी भी देख ली हमने
कि भाई अगर वो उल्टा डाले तो उसको ब्लॉक करना है लॉगिन करते हुए। अब अगर उसने जो जो हमने लूप चलाया, अगर तो यूज़र मिल गया है, अगर तो -1 नहीं है, -1 शो कर रहा है कि वो नहीं होगा। अगर वो नहीं है, -1 के अलावा कोई नंबर है, तो हम क्या करेंगे, उस यू में जो भी हमारे जो एलिमेंट हमें मिला है उस एरे से हम उसको यू में स्टोर करवा लेंगे। यू क्या था, हमने शुरू में डिफाइन किया, एक स्ट्रक्चर है, सही है। जो भी यूज़र की वैल्यू है ना, उसको हम यू में स्टोर करवा लेंगे, ताकि इसको हम आगे दे सकें डेटा, जो भी हमारे अगले फंक्शन है वो उसको एक्सेस करके आगे काम कर सकें। देन हमने प्रिंट करवा दिया कि भाई लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद अगेन हमारे ऑप्शंस प्रिंट होंगे भाई, जैसे अगर आप अकाउंट क्रिएट करो तब भी आपके ऑप्शन आते हैं कि ट्रांजैक्शन करनी है, कौन सी करनी है, लॉगिन करोगे तब भी करनी है। तो हमने इसको यहाँ भी कॉल कर दिया स्प्रिंट फंक्शन को कि भाई ये काम आपने, जिसके बाद ये स्क्रीन यूज़र को दिखानी है। अगर नहीं है तो बस लॉगिन फेल कर दो, बोलो आपका पासवर्ड नेम क्या है, रॉन्ग है और गलत है, ये आपने उसको बता दिया, ठीक है। अब अगला फंक्शन है जो है प्रिंट ऑप्शंस वाला। अब इसकी बात हो रही है तो ये आप समझाएंगे आपको समी। अस्सलाम वालेकुम, मैं समी हूँ। और मैं ये जो प्रिंट ऑप्शंस है, ये रिटर्न टाइप है इसकी वॉइड, और ये पैरामीटर्स ले रहा है स्ट्रक्चर यूज़र और पॉइंटर यू। अब हमने सबसे पहले इधर एक इंटीजर डिफाइन करवाया है ट्रांस ऑप्शन। वो क्या करेगा, वो यूज़र से इनपुट लेगा कि उसको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे हमने नीचे लिखा हुआ है, प्लीज सेलेक्ट अ ट्रांसेक्शन। तो अगर वो 1 सेलेक्ट करेगा तो वो बैलेंस इंक्वायरी है, 2 सेलेक्ट करेगा तो वो फास्ट कैश है, 3 कैश विड्रॉल, 4 डिपॉजिट। फिर उसके बाद प्रिंट एफ, स्कैन एफ, हमने ट्रांस ऑप्शन उससे इनपुट ले लिया। अब स्विच हमने लगा दिया है केसेस के लिए। अगर उसने 1 सेलेक्ट किया तो बैलेंस इंक्वायरी पे चले जाएंगे। तो अब बैलेंस इंक्वायरी आ गया तो हम देख लेते हैं बैलेंस इंक्वायरी का फंक्शन कर क्या रहा है। बैलेंस इंक्वायरी का फंक्शन यूजर को उसकी सारी डिटेल्स बता देगा कि उसके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं। वो अब वो स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ कैसे करेगा। इसकी रिटर्न टाइप है वॉइड, और बैलेंस इंक्वायरी भी सेम पैरामीटर पास कर रहा है जो प्रिंट ऑप्शन कर रहा था। अब सबसे पहले हमने एक लाइन प्रिंट कर दी, अकाउंट डिटेल्स, और प्रिंट एफ से हमने जो भी स्ट्रक्चर के अंदर नेम प्रिंट करवाया था सबसे पहले वो स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी। फिर जो अकाउंट टाइप थी वो प्रिंट करवा दिया, ईमेल प्रिंट करवा दिया, फ़ोन नंबर प्रिंट करवा दिया, और उसका बैलेंस प्रिंट करवा दिया। और उसके बाद जब बैलेंस इंक्वायरी ये रिटर्न करेगा उधर, तो ये पॉइंटर से रिटर्न कर देगा, और बैलेंस इंक्वायरी यानी फर्स्ट केस जो है हमारा स्विच का, वो ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अगर उसने केस 2 सेलेक्ट किया, यानी अगर उसने 2 इनपुट किया, तो हमारे पास फास्ट कैश की तरफ आ जाएगा वो। फास्ट कैश के अंदर हम जो है एक इंटीजर डेटा टाइप रिटर्न करवाएँगे, क्योंकि अगर उसको विथड्रॉ करवाना है कैश, और फास्ट कैश के अंदर हमारे पास 5 ऑप्शंस है टोटल। तो सबसे पहले हमने एक इंटीजर डिफाइन किया और अमाउंट हमने 0 कर दी, क्योंकि अभी तक उसने कुछ अमाउंट टाइप नहीं करी है, तो हमने 0 कर दी फिर उसके बाद हमने प्रिंटफ की स्टेटमेंट लगाई कि अगर उसने 1 सेलेक्ट किया है तो ₹500 हैं, 2 है तो 1000, 3 है तो 5000, ऐसे ही 5 है तो 15000। फिर हमने उससे उसका इनपुट भी ले लिया कि उसने क्या सेलेक्ट करना है। फिर हम फिर हमने स्विच का ऑप्शन लगा दिया। आस्किंग फॉर स्लिप है, वो आपको हमारा एक और मेंबर बताएगा। स्विच का जो ऑप्शन है हमने लगा दिया कि अगर फर्स्ट केस है तो उसके अंदर अमाउंट जो है वो हमने 500 रखनी है, और वैसे ही अगर 15th केस है तो अमाउंट जो है वो 15,000 होगी। फिर अगर डिफ़ॉल्ट यानी उसने 1 से 5 के अलावा कुछ नंबर टाइप किया है तो इनवैलिड ऑप्शन आ जाएगा और रिटर्न 1 कर देगा। फिर उसके बाद इफ हमने लगाया हुआ है कंडीशनल कि अगर जो उसका बैलेंस है अकाउंट के अंदर, जो हमने स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करवाया हुआ है, वो बड़ा है या बराबर है अमाउंट के, तो उसके बैलेंस के अंदर से अमाउंट की रकम माइनस कर दी जाए। और उसकी उसकी अमाउंट की रकम जब माइनस हो गई तो उसको बता दिया जाए प्रिंट की लाइन से, प्रिंट स्टेटमेंट से, कि उसका जो विड्रॉ है वो सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन लेकिन अगर उसकी अमाउंट की रकम ज़्यादा नहीं है तो हमने जो एल्स लगाया हुआ है तो इनसफिशिएंट बैलेंस टाइप कर देगा। अब इफ के अंदर हमने एक नेस्टेड लगाया हुआ है कि अगर उसको स्लिप चाहिए, कि उसने ट्रांजैक्शन करी तो उसको अगर स्लिप चाहिए, तो वाई अगर वो टाइप करेगा तो वो एक ट्रांजैक्शन स्लिप निकाल कर उसको दे देगा। और फिर हमने वापस से सेव यूजर्स कॉल किया है और लोड कर लिया उसका नया बैलेंस जो हो गया है उसके विड्रॉ करवाने के बाद। फिर फिर ये जो है ये रिटर्न 0 कर कर ये टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हम वापस से आते हैं, अगर उसने प्रिंट ऑप्शंस में जहाँ हमने करवाया था उसने 4 सेलेक्ट किया है डिपॉजिट, तो अगर वो पैसे जमा करवाना चाह रहा है तो हाँ, हाँ, तो ये है
रिटर्न डेटा टाइप कुछ भी नहीं, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है। फिर उसके बाद हमने वही पैरामीटर जो हमने प्रिंट ऑप्शन का डिफाइन किया था, स्ट्रक्चर और उसका पॉइंटर, वो। अब इसमें भी इंटीजर अमाउंट, क्योंकि हम उससे कुछ अमाउंट लेंगे तो हमने एक इंटीजर उसके लिए डिफाइन करवा दिया। अब एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, हमने अब उससे इनपुट ले लिया कि उसको कितनी चीज डिपॉजिट करवानी है। आस्किंग फॉर स्लिप एक फंक्शन है जो कॉल हो रहा है इधर। फिर इफ अमाउंट जो है अगर जीरो है, उसने जीरो टाइप किया है, तो इनवैलिड अमाउंट हम उसको बोल देंगे और आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अगर उसने अमाउंट सही टाइप करी है तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे। फिर उसकी जो अमाउंट है वो हम यू बैलेंस में, जो स्ट्रक्चर के अंदर बैलेंस हमारे पास स्टोर है, हम उसको अपडेट कर लेंगे इस अमाउंट में प्लस करवा, ये अमाउंट उसमें प्लस करवा के। और फिर अगर हमें नहीं पता ना कौन सा यूजर एक्सेस कर रहा है, तो इस वजह से हमने एक एरे स्टार्ट कर दी। वो एरे जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स हैं जो हमने लोड यूजर से कॉल करवाए थे, वो सबको अपडेट कर देगा एक एक करके। और वो सबका बैलेंस जो है, जो न्यू बैलेंस हो गया है, उससे वो कर देगा, उसमें स्टोर कर देगा। फिर सेव यूजर्स, हमने एक फंक्शन बनाया था सेव यूजर्स, जो आपको अरसलान समझा चुका है। उसके अंदर ये सारे यूजर्स जो हमने अपडेट करे वो सेव कर लेंगे, ये सारे यूजर्स का नया डेटा। और फिर उसके बाद हम एक प्रिंट स्टेटमेंट चला देंगे, डिपॉजिट सक्सेसफुल अगर हो गया तो। और उसको अगर स्लिप चाहिए थी तो वो एक स्लिप हम प्रिंट करवा देंगे, उससे ले लेंगे। इफ यस तो हम एक स्लिप उसके लिए प्रिंट करवा देंगे ट्रांजेक्शन स्लिप के नाम से। अब आगे का जो कोड है, केस नंबर 3, वो आपको आर्यन समझाएंगे। प्रिंट ऑप्शंस का केस नंबर 3 विड्रॉ वाला। ओके ओके। कैश विड्रॉल का ऑप्शन जब यूजर कॉल करेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉग्ड इन यूजर है मैनुअली वो विड्रॉ करेगा कस्टम अमाउंट ऑफ कैश जो भी उसकी मर्जी होगी। इफ यू कैन गो, हाँ, वो अपना अमाउंट एंटर करेगा। और जो नेक्स्ट लाइन है उसमें बताया गया है कि आस्किंग फॉर अ स्लिप। यूजर ये चॉइस कर सकता है कि उसको अपनी इस ट्रांजैक्शन की स्लिप चाहिए या नहीं चाहिए, विच वी विल डिस्कस लेटर। बट आई विल फर्स्ट डिस्कस दिस फंक्शन कि अगर अमाउंट आपका लेस देन जीरो है तो वो इनवैलिड अमाउंट प्रिंट कर देगा। एंड इफ योर बैलेंस इज लेस देन अमाउंट तो फिर आपके पास प्रिंट कर देगा इनसफिशिएंट बैलेंस। नाउ इफ वी गो डाउन लिटिल, देन हमने एक लूप चलाया है जिसमें हमने यूजर नेम और जो क्या बोलते हैं जो लॉग्ड इन यूजर का नेम है वो अगर उसकी सिमिलरिटी जीरो है एंड उसके पासवर्ड सेम है, इफ द नेम एंड द पासवर्ड आर सेम, then the balance will be updated. Now if you go to save users, save users में जैसे समी ने पहले ही बताया था कि save users में जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं वो सेव हो रही है। तो save users just function for saving the updated amount the to saved in the file. Now asking for slip, the two functions asking for slip and transaction slip are correlated. asking for slip में हमारे पास क्या बोलते हैं दो चीजें आती हैं। सबसे पहले वो आपसे चॉइस पूछता है y और n कि यूजर को स्लिप चाहिए या नहीं चाहिए, एंड द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन either it's cash withdrawal, fast cash deposit, or withdrawal into a global wanted slip structure. This stored info is later used by transaction slip to generate a correct receipt. If we can see the transaction slip function. Now, इस फंक्शन में हमने दो आर्गुमेंट्स पास किए हैं, अमाउंट और बैलेंस। The transaction type, the function prints a formatted ATM style transaction receipt. Transaction type from wanted slip dot type. The amount withdrawn, as you can see in the PPT. Similar receipt will be printed. And out of the code. Yeah. The ATM ID, which is for now fixed for the demo, and updated account balance, the current date and time. हमने current date and time लेने के लिए लाइब्रेरी इंक्लूड करी है time.h। तो ये ट्रांजैक्शन स्लिप एक हमें रियलिस्टिक बैंकिंग फीलिंग दे देती है कि जो एटीएम जनरेट करते हैं रिसीट विद टाइम स्टैम्प्स।
So basically, this is the main code that we made, and Now now we will give a demo. now we start give you demo that how codes work, how screen looks like. So yeah, let's move on to this. First of all, it's give you our bank name, then our tagline, colorful. So for this color, we use ANSI codes, which are codes that allow you to apply color on text. सही है. अब इसके बाद हम चूज कर रहे हैं, जैसे अब अभी हम बनाते हैं, लेट्स सपोज अब हम एक अकाउंट बनाते हैं. हम चूज करेंगे कौन सा ऑप्शन 1. ठीक है. अब लेट्स सपोज मैं अपनी चीजें डालता हूँ. First we enter email name, now we enter email, and so on the requested things. The phone number, the password which we will use for login, and the amount you want to deposit in your account. Let's suppose we enter 50,000. Okay. Now it says that your account created successfully. Now it's asked that function नहीं था वहाँ पे एक print option, वो कॉल हुआ है. वो हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या करना है, कौन सी ट्रांजेक्शन करनी है. आपने अकाउंट तो बना लिया, ठीक है. आपने ट्रांजेक्शन कौन सी करनी है, ये वो पूछ रहा है. प्रिंट ऑप्शन वाला फंक्शन. तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि वी यूज फास्ट कैश. सो फॉर फास्ट कैश enter 2. Now it asking give me some options that these are options are available in our bank. So select any one of them. So for example, we select 5,000. Now it's ask us the if you want receipt of transaction, the function we create in our code asking for slip, that function is called. And this function asks if you want. So for now we type y. सो नाउ यू सी कि इसने हमें पूरा बता दिया कि भाई आपका विड्रॉ सक्सेसफुल हो चुकी है. ये आपकी रिसिप्ट आ गई है, आपने फास्ट कैश किया है, फास्ट कैश वाली ट्रांजेक्शन की है. ये आपकी अमाउंट थी, ये आपने जिस एटीएम से किया उसकी आईडी है, और आपका बैलेंस ये रहा. और इसने साथ साथ आपको करंट और डेट एंड टाइम भी बता दिया कि भाई ये करंट डेट एंड टाइम चल रहा है जिस वक्त आपने ट्रांजेक्शन की है. अब हम ये देख लेते हैं कि भाई हमने जो ये बनाया था यूज़र, ये जो हमने बनाया था, ये देखते हैं कि ये स्टोर हुआ भी है फाइल में, हुआ है तो कैसे हुआ है. और फिर हमने इसको Hmm. अपडेट भी किया है. देखें आपने, हमने इसको फास्ट कैश से पैसे निकाले, तो वो देखते हैं कि अपडेट हुआ है नहीं हुआ. हमने डाले थे 50,000 रुपये, फिर हमने 5,000 निकाल लिए, तो नाउ उसके पास अभी 45,000 होने चाहिए. लेट्स सी. सो देखो यहाँ पे आ गया अरसलान अहमद नेम, अरसलान ईमेल, इस हर फोन नंबर, हर हिज पासवर्ड एंड हिज बैलेंस. ये अपडेटेड बैलेंस है. उसने डाले तो 50,000 आते, लेकिन उसने क्या किया, डालते ही 5,000 रुपये के फास्ट कैश करके अब ट्रांजेक्शन कर ली, तो उसके कितने बचे, 45,000. सो ऐसे आप जब भी अकाउंट बनाओगे तो आपसे पूछेगा. और अगर हम एक बार देख लें कि लॉगिन करते हुए कैसे होगा वंस मोर, तो लॉगिन के लिए आपका यूज़ करोगे, टू यूज़ करोगे. देन आप देखोगे अपना नाम जो भी आपने अकाउंट बनाते हुए लिखा था, मैंने लिखा था असलान अहमद. देन आप टाइप करोगे अपना पासवर्ड. सो इट टेल्स लॉगिन सक्सेसफुल. अगेन वो प्रिंट ऑप्शन वाला यूज हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, मैंने दिखाया था आपको 2 जगह कॉल हो रहा है. फिर वही पूछेगा कि क्या करना है. लेट्स सपोज अभी हम कैश विड्रॉल करते हैं. अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप अपनी अमाउंट बताओ. फास्ट कैश में वो दे रहा था कुछ खास अमाउंट्स बता रहा था 5. अब क्या है, अपनी मर्जी डालो, 500, 400, 450, जो डालना डालो. लेट्स सपोज हम डालते हैं 6,000, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन नहीं था 6,000 का, हमने डाला. अब वही पूछेगा कि भाई आपको रिसीट चाहिए या नहीं चाहिए. हम लिख देते हैं यस. सो नाउ अगेन से विड्रॉ सक्सेसफुल, एटीएम ट्रांजेक्शन रिसीव्ड. पहले हमने कितने निकाले हैं, 6,000 निकाले हैं. बैलेंस कितना रह गया हमारा, 39,000. पहले हमारा कितना था, 45,000, तो 39,000 ही होना चाहिए. अगेन एक बार देख लेते हैं हम कि ये अपडेट हुआ या नहीं हुआ. सो सी, ये 39,000 हो गया, तो मतलब हमारा जो डेटा है वो रियल टाइम में अपडेट भी हो रहा है. और ये बाकी हमारे प्रीवियस यूजर ने जिन्होंने हमारे बैंक को यूज़ किया था. तो ऐसे हम अपना सारा डेटा स्टोर करवा रहे हैं. ये हमारे प्रोग्राम की लॉजिक थी, और ये हमारे प्रोग्राम की स्क्रीन थी जो कि आपने देख ली है. सो या ये हमारा कोड था. और कुछ आप अरसलान, एक बार रिवर्स पासवर्ड की तरह बता दे यार. रिवर्स पासवर्ड, ओके. हम्म. अगर हमने जो लॉजिक बनाई थी, मैंने आपको दिखाया था कि अगर हमने एक स्ट्रक्चर में एक वेरिएबल बनाया था इस ब्लॉक्ड वाला, वो कि बाय डिफॉल्ट क्या था, जीरो था. मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट यूजर क्या है, जीरो, ब्लॉक नहीं है, अनब्लॉक्ड है. सही है. तो हमने बनाया क्यों है कि आपने अपने एटीएम में देखा होगा रियल टाइम में जो हमारे पास एटीएम्स आते हैं, कि अगर उसमें आप उल्टा पासवर्ड डालोगे तो आपका कार्ड क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, बाहर नहीं आता और लिखा आता है आपका अकाउंट ब्लॉक्ड हो गया.
अब ये फीचर क्या है, ये सिक्योरिटी फीचर हमने यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है अपने पीपीटी में, आपको अगर हम दिखाएं तो ये हमारा क्या है, सिक्योरिटी फीचर है कि अगर कोई पीछे से आपको ज़बरदस्ती आपसे पैसे निकलवा रहा है, अगर अपना पासवर्ड आप रिवर्स ऑर्डर में डालोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक्ड हो जाएगा, ना पैसे निकलेंगे ना आपको कोई नुकसान होगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हम इसको देखते हैं हमने कैसे इसको टैकल कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिखा दूँ एक बार इसका रियल टाइम के, ये हमारा फंक्शन है, पहले आपको फंक्शन दिखा देता हूँ रिवर्स पासवर्ड वाला कि वो कैसे वर्क कर रहा है। सिंपल सा फंक्शन आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये क्या कर रहा है, आपसे आपका वो ले रहा है पासवर्ड, जो पासवर्ड की स्ट्रिंग थी जो हमने बनाते हुए दी थी वो आपसे ले रहा है। अब ये कॉल कहाँ हो रहा है, ये कॉल होगा हमारे लॉगिन होते हुए, सही है, लॉगिन होते हुए कॉल होगा जब हम लॉगिन कर रहे हैं। तो ये लेगा कि आपसे जो पासवर्ड डाला था लॉगिन होते वो पासवर्ड लेगा। देन ये क्या करेगा कि हमने एक और वेरिएबल बना लिया ताकि इसमें हम उल्टा पासवर्ड स्टोर कराते जाएं। उसके लिए हमने लूप चलाया कि भाई उल्टा डालना शुरू करो, आई यहाँ पे आए तो आई में पहले कौन सा है, लास्ट वाला है। ऐसे चल चल के ये बिल्कुल उल्टा पासवर्ड इसमें स्टोर होता जाएगा रिवर्स पासवर्ड में। एंड देन हम उस रिवर्स पासवर्ड को यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, और जहाँ पे हमने लॉगिन कर रहे हैं वहाँ पे हम चेक करेंगे कि जहाँ से रिटर्न हुआ है पासवर्ड, अगर वो उल्टा है, मतलब जो असल है उसके उल्टा है, तो आप क्या करो, अकाउंट को ब्लॉक कर दो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हमने यहाँ पे किया है इसको लॉगिन अकाउंट में। यहाँ पे देखो कि अगर जो हमारा, वेट अ सेकेंड, ये रहा देखो हमने क्या किया कि अगर जो हमारे ये रहेगा, अगर जो हमारे रिवर्स पासवर्ड हमने कॉल किया है, अगर वो जो डाला है हमने, हम कंपेयर कर रहे हैं कि रिवर्स पासवर्ड करके और जो उसने डाला है अगर दोनों बराबर है, जीरो आ जाता है कंपेयर करने के बाद, तो हम क्या लिख देते हैं, इनकरेक्ट पासवर्ड एंड अकाउंट ब्लॉक्ड, वाला अकाउंट ब्लॉक्ड हो जाएगा, वो रेड कलर में शो होगा। अब इसका हम प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं करके, आउटपुट कैसा आएगा। जैसे लेट सपोज जो मैंने अभी अकाउंट बनाया था अपना, वो मैंने बनाया था अरसलान के नाम से, ठीक है। तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ, सही है, अरसलान अहमद मेरे अकाउंट का नेम था। और अगर मेरा पासवर्ड आपको याद हो तो था अरसलान 1 2 3, हम इसको उल्टा डालते हैं, 3 2 1 NAL, NA अरसलान, NALRSR, और A कैपिटल था। ये मैंने पासवर्ड अपना क्या किया है, उल्टा डाल दिया। अब अगर मैं एंटर करूंगा सो ये आपको कहेगा कि आपका अकाउंट, सॉरी ये थोड़ा अगेन इसको रन कर लेते हैं जल्दी से, अरसलान अहमद, हमारा पासवर्ड डालेंगे तो क्या होगा, 3 2 1 अरसलान NALSRA। तो आप कहेगा, क्या कहेगा आपको, आपको वार्निंग वो दे देगी उसने कि योर अकाउंट इज ब्लॉक, प्लीज विजिट आवर ब्रांच। और अब जो वो इस ब्लॉक वाला हमारा वेरिएबल था स्ट्रक्चर में, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। आपको मैं दिखा भी दूँ अपने फाइल में जाके, हमने इसको अपडेट भी कर दिया कि भाई अब जो कोई भी यूजर को एक्सेस करना चाहेगा तो वो एक्सेस नहीं कर सकता। ये देखो, ये जो लास्ट वैल्यू थी हमारी, लास्ट वैल्यू हमने क्या थी, शुरू में जीरो थी जैसे सबकी दिख रही है आपको। अब यहाँ पे क्या हो गई, ये 1 हो गई है, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब अगर यूजर चाहेगा कि उसको अनब्लॉक करवाना है अपना अकाउंट, तो उसके लिए उसको हमारे विजिट करना पड़ेगा हमारे पास आके, हम उसको यहाँ से मैन्युअली अपडेट कर देंगे जैसे आमतौर पर बैंक में होता है। तो ये हमारे कुल फीचर्स थे, ये आपको मैं साथ दिखा दिए फीचर्स। ये जॉर सैफर वाले भी हमने बता दिया आपको कि भाई हैशिंग कर रहे हैं हम, पासवर्ड इनक्रिप्ट कर रहे हैं, हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जॉर सैफर वाली टेक्निक को हम यूज़ कर रहे हैं पासवर्ड को हैश करने के लिए, ताकि कोई हैक ना कर सके आराम से, सही है। ये हमारे सारे फीचर्स थे, हमारे आइडिया था जो भी था। अब हमारे पास लास्ट है फ्यूचर गोल। इंशाल्लाह हम इसको फ्यूचर में इसका हम जीयूआई इंटरफेस बनाएंगे, इसकी वेब ऐप बनाएंगे, एक ऐप बनाएंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे, पूरा इसको मतलब फंक्शनल करेंगे जितना हो सके। अभी तो उसका जीयूआई नहीं है, मानता हूँ भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसका इंटरफेस कमांड लाइन है, तो इंशाल्लाह इसको हम फ्यूचर में बनाएंगे। और साथ ही साथ जब हमारे पास टेलीपोर्टेशन जो फीचर है, एक हाइपोथेटिकल टर्म है कि जब वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी, तो इंशाल्लाह हम इसको इस काबिल भी बनाएंगे ताकि यूज़र घर बैठे इसमें पैसे भी डाल सके अपने लैपटॉप से। मानता हूँ कि अभी वो चीज़ हमारे पास फंक्शनल नहीं है, टेलीपोर्टेशन। बेसिकली टेलीपोर्टेशन क्या है, एक एक टर्म है, जैसे देखो हम पहले ज़माने में क्या करते थे, हमें जो भी मैसेज ट्रांसफ़र करना होता था, किसी भी अपने बात करनी होती थी किसी भी अपने प्यारे से, तो हम क्या करते थे कि एक खत लिखते थे और फिर उसको पोस्ट करते थे, ऐसे ही होता था। तो मसला क्या था कि बहुत टाइम लगता था, बहुत बहुत पैसे टाइम कह लो, बहुत टाइम लगता था, एक ही महीने में खत पहुंचता था, सही है। अब ज़माना एडवांस हुआ, फिर हम क्या करते हैं, अब हम घर बैठे मोबाइल से मैं मैसेज किया, हेलो हाय, फ़ौरन एक सेकंड भी नहीं, नैनो सेकंड में आपका मैसेज उसके पास पहुंच जाता है। अब हम क्या करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। पहले हम क्या करते थे, मास ट्रांसफ़र करते थे, लेटर का कुछ मास होता था वो ट्रांसफ़र करते थे। अब हम ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। अब हमें जो आइंस्टाइन है वो हमें बता चुका है कि भाई E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी एंड मास बोथ आर कन्वर्टेबल, बोथ आर इंटरचेंजेबल, दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है।
तो अगर ये फीचर ये हो सकता है, जिसका नाम मैंने बताया टेलीपोर्टेशन, ये इसको कहते हैं कि एनर्जी और मास दोनों आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इस फीचर को हम कहते हैं टेलीपोर्टेशन। अगर ये हमारे पास हो गया कि हम घर बैठे पैसे डालें हमारे अकाउंट में चले जाएं, अगर ये फीचर हो गया तो इंशाल्लाह हम इसको भी इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे इंशाल्लाह। सही है, तो ये हमारा कोर्स था पूरा। थैंक यू आपने हमारी वीडियो देखी। सो यार दैट्स फ्रॉम माय साइड। आप दोनों ने कुछ कहना है? समी, आर्यन? नहीं बस सही है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय।